Hello, my learned viewers and guys. I, Annu Bhai Soni, offer my hearty welcome and salute to you all. I have many hopes regarding your well-beings, and definitely you will have well and fine. If I am remembering well, during my last meeting with you people, I have promised you, I had told you that after the completion of my discussion on very important and significant topic of the CBI, I'll immediately start the worthy discussion on ED also. But due to certain medical issues, I could not able to connect with you, and for that my absence and inability, I convey my apology from inner core of my heart, with many hopes that you will consider the matter and oblige me. Sir, as I stated before, that during our last meeting, when we are talking about the know-how and working system of the CBI, I had promised you that after the completion of that discussion on CBI, will start immediately the working system, constitution, and other information regarding the ED. Now today I am going to open the discussion on Enforcement Directorate. सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED पर चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ. Now there is a very important question: what is the ED? Sir, you are well versed regarding this fact that nowadays the ED has become a hot name and fame, and it has become a headline news of each and every local and national newspapers because of its action against the scammers, top class bureaucrats, politicians, and other business big shots. Then because of the very hot role, very significant and attractive role of the ED has attracted the attention of not only the intellectual class of the people, elite class of the people, but the attention of common people also. आज की तारीख में एक आम आदमी भी ये जानना चाहता है कि ED क्या है. It is Enforcement Director. Whether it is a super class agency of the government of India, or it is a detective agency like CBI, or it is any other thing. तो आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ED क्या है. इसे प्रवर्तन निर्देशालय के नाम से जाना जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. मैं आपके ध्यान में एक बात लाऊं कि किसी भी कानून को अस्तित्व में होने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है. फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लॉ, द टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ and another is enforcement of the law. The enactment is made by the parliament or the assembly of the state, and enforcement is made by the agencies, governmental agencies. कोई भी कानून जो है ना, जब अस्तित्व में आता है या उसको लाया जाता है, तो उसके अस्तित्व में बने रहने के लिए दो चीजें आवश्यक होती है अकॉर्डिंग टू द जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र के मुताबिक. नंबर वन, उस कानून का अधिनियमन किया जाना, उस कानून का निर्माण किया जाना. इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ. ये काम संसद या विधानमंडल करती है. यदि कोई केंद्रीय कानून का निर्माण किया जाना है
तो संसद, यदि राज्य स्तर के किसी कानून का निर्माण किया जाना है तो विधानमंडल। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बॉडी रिगार्डिंग द इनेक्टमेंट ऑफ द एनी लॉ। लेकिन इनेक्टमेंट कर देने से ही बात खत्म नहीं होती, बात पूर्ण नहीं होती। उस कानून को लागू करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने कानून बना दिया लेकिन आप उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, लागू नहीं कर पा रहे हैं, फिर उस कानून के बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इन्फोर्समेंट इज ऑल्सो ए इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लॉ। तो इनेक्टमेंट इज मेड बाय द पार्लियामेंट or by the state assembly, whereas the enforcement is made by the governmental agencies like police, CBI and ED also. अब हमने देखा कि जब हम कानून को बना लिए उसके बाद हम उसको इन्फोर्स करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रवर्तन। कानून को जो लागू कर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज नोन एज ए इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। उस कानून को कैसे लागू किया जाए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी का काम ही है कुछ विशेष प्रकार के कानून को देश में लागू करना। सो इट इज नोन एज ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। whenever we talk about the enforcement of the enforcement directorate, it is very clear that the enforcement directorate enforces certain specific laws। कुछ विशेष प्रकार के कानून को प्रवर्तित करने का काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है, ईडी करती है। इसीलिए इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है, प्रवर्तन निर्देशालय कहा जाता है, जो किसी विशेष प्रकार के कानून को प्रवर्तित करने का, लागू करने का काम करती है। तो नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू डिस्कस। What are these laws which are enforced by the enforcement directorate? ये आखिर वे कौन से महत्वपूर्ण स्पेशल कानून हैं जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी जो है वो लागू करती है, उसको प्रवर्तित करती है ना, उस कानून को लागू करती है, प्रवर्तित करती है। वे कौन से ऐसे कानून हैं? तो उस कानून के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर ईडी अस्तित्व में कैसे आया। हाउ द ईडी वाज इन एग्जिस्टेंस, कैसे आया था। तो सर थोड़ा पहले जाना पड़ेगा कि 1956 में ये एक प्रवर्तन इकाई के रूप में गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये एक इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में अस्तित्व में आया। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द ईडी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1956 एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ड्यूरिंग 1956। ओके, और उस समय इसको अस्तित्व में लाने का जो उद्देश्य था वो था फेरा कानून, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत होने वाले अपराधों के संबंध में कार्रवाई करना। अब तक अपन उसको कैसे समझें कि उस समय ये प्रवर्तन इकाई के रूप में किस लिए अस्तित्व में लाया गया था, ताकि वो फेरा कानून के प्रावधानों को प्रवर्तित करा सके, प्रवर्तित करे, उसको लागू करे। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ठीक है सर। तो जो व्यापार विनिमय से संबंधित जो उस समय के जो कानून बनाए गए थे 1947 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उन कानून के अंतर्गत जो अपराध होते थे उन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए उस कानून को प्रवर्तित करना आवश्यक था। तो उसको प्रवर्तित करने की जो जवाबदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी? प्रवर्तन इकाई को, जो 1956 में इस्टेब्लिश की गई। 1957 में उसी प्रवर्तन इकाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दर्जा दिया गया, ईडी का दर्जा दिया गया। और आज की तारीख में जो ईडी है वो ईडी कुछ विशेष प्रकार के कानून को प्रवर्तित करने का काम करती है। प्रेजेंटली द ईडी
enforces certain specific laws which are is following, उसको ऐसा समझते हैं, कोई इस प्रकार से है। सबसे पहले जो ईडी के पास जिस कानून को प्रवर्तित करने का अधिकार दिया गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसके लिए ईडी बनाई गई है, वो है सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ED functions as an adjudicating authority to enforce the provisions of Money Prevention of Money Laundering Act 2002. Okay. The second is the Foreign Exchange Management Act. ये दूसरा कानून है सर 1999 का, जिसके प्रावधानों को ईडी प्रवर्तित करती है। तीसरा है द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। भगोड़े आर्थिक अपराधी के संबंध में जो अधिनियम बनाया गया है 2018 में, उसके कानून को भी ये प्रवर्तित कराती है। चौथा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है जिसको अपन कोफे पोसा के नाम से जानते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ये जो चार पांच प्रकार के जो स्पेसिफिक कानून है, इसको प्रवर्तित करने का, इसको इन्फोर्स करने का जो अधिकार है वो ईडी को दिया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया है। चूंकि ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्हीं कानूनों को प्रवर्तित करती है, इन्हीं कानून को लागू करती है, इन्हीं कानून के अंतर्गत किसी प्रकार का अपराध होने पर एक्शन लेती है, इसीलिए इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है। अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का फॉर्मेशन क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये किसके हेडशिप में काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इन सारी बातों पर अपनी जो चर्चा है हम अगले वीडियो पर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। भाई एक तो हो गई।